Hello students, today I am going to revise the chapter number 1, that is some basic concept of chemistry. Now let us start. Topic is concentration in solution. Dear students, what do you mean by concentration? Concentration means the amount of solute that are present in a given quantity of solvent or solution. This is called as the concentration. Okay. Now, the concentration of the solution that is expressed in the 4 ways: mass percent, mole fraction, molarity, molality. Okay, means most of the reactions that are present in our laboratory that are carried out in the solution. Okay, and in a solution there are two components. First is solute and second is solvent, and after that solution is formed. It means what is a solute? Solute क्या है बेटा? Suppose this is sucrose. Sucrose is a table sugar. Okay, means solute is present in a less amount. Okay, and here solvent is taken. This is present in higher amount. This is solvent. Okay, after adding the solute to the solvent, then what will be formed? This will form the concentration. Means concentration that is equal to solute by solvent. Okay, now next is mass percent. Mass percent क्या है? देखो बेटा, this is mass percent. देखो बेटा, mass of the element divide by total mass of the compound, or you can see that solution. अगर हम solution का use कर रहे हैं तो यहाँ पे solution use करेंगे. Multiply में 100 means it is the mass of component per 100 gram of solution, and in a solution there are two components. Then how will you calculate the mass percent? Mass percent is equal to mass of solute divided by mass of solution multiply में 100. Okay, so by the help of this formula you can easily calculate the mass percentage. Suppose बेटा मैं कहती हूँ कि 10% by W, इट मीन्स इसका मतलब क्या है? देखो मैं कह रही हूँ ये W/W सॉल्यूशन है आपका NaCl का. ठीक है, इसका मतलब क्या है कि 10 ग्राम ऑफ NaCl दैट आर प्रेजेंट इन 90 ग्राम ऑफ वाटर. ओके, इट मीन्स द टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन दैट इज 100 ग्राम. ओके, क्या आ जाएगा? ये 100 ग्राम आ जाएगा. Now, mass percent is used by only the binary solution. ठीक है, and it is used for the calculation of very small quantities. Okay. Now next is, now I will take some example like this. A solution is prepared by adding 2 gram of substance A. मान लो A substance है, इसमें आपको 2 ग्राम solution मीन्स सब्सटेंस ए ऐड किया है. किस में ऐड किया है बेटा? वाटर के अंदर. मीन्स 18 ग्राम आपका वाटर है. तो इसमें हम मास परसेंट कैसे निकालेंगे? देखो, मास परसेंट ऑफ ए कैसे निकालेंगे? मास ऑफ ए डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100. तो देखो बेटा, इस केस में क्या लेंगे? जैसे हमें मास परसेंट निकालनी है तो मास परसेंट दैट इज इक्वल टू मास ऑफ ए कितना है? 2 डिवाइड बाय सॉल्यूशन किससे बनता है? सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट से बनता है, दैट इज 2 + 18. तो ये क्या आ जाएगा बेटा? 2/20 इंटू में 100. तो दैट इज इक्वल टू 10%. ये कितना आ जाएगा बेटा? 10% आ जाएगा. ओके, ये आपका आंसर है. Now next is mole fraction. Mole fraction is represented by, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? देखो बेटा, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं. मीन्स इट इज़ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए पार्टिकुलर कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन.
ओके अब सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट हैं, मीन्स अगर सब्सटेंस ए डिजॉल्व होता है सब्सटेंस बी में, देन देयर नंबर ऑफ मोल्स आर Na एंड Nb। ओके तो मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए ये निकाल रखा बेटा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए दैट इज इक्वल टू Na मीन्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन Na प्लस Nb। तो ये आपका फॉर्मूला ऐसे बन जाएगा बेटा, काई ए दैट इज इक्वल टू Na डिवाइड में Na प्लस Nb। ओके नाउ नेक्स्ट इज आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी निकालने हैं, इट मीन्स दिस इज इक्वल टू zeta b that is equal to number of moles of B divide में number of moles of solution that is Na plus Nb। ओके अब इस केस में क्या है बेटा, देखो इसमें zeta a प्लस zeta b दैट इज इक्वल टू 1, वो किसके इक्वल है बेटा, 1 के इक्वल है। इट मीन्स द मोल फ्रैक्शन दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। मोल फ्रैक्शन हमेशा टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट होती है। देखो सबसे मेन कंसेप्ट है यहाँ पे, क्या मोल फ्रैक्शन टेम्परेचर पर डिपेंडेंट होती है, नहीं, टेम्परेचर पर डिपेंडेंट नहीं होती। Now the next is the most important concept that is molarity। मोलैरिटी पे देखना है बेटा, देखो मोलैरिटी क्या है। मोलैरिटी इज मोस्ट वाइडली यूज्ड यूनिट एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल M। क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, इसको हम क्या बोलते हैं, मोलैरिटी बोलते हैं। मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ओके अब आपको पता है बेटा मोल्स किसके इक्वल होते हैं, मोल्स मीन्स गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास, यही होता है। ओके नाउ इसमें हम कैसे करते हैं, देखो बेटा जो मोलैरिटी होती है हम यहाँ पे लिखेंगे मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई में वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। ओके तो हम मोलैरिटी को सिंपल कैसे लिखते हैं बेटा, दिस इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, मोलर मास ऑफ आप जो भी सॉल्यूट का ही यूज़ करोगे, मल्टीप्लाई इधर मल्टीप्लाई करोगे बेटा 1000 और इधर मल्टीप्लाई करोगे वी। वॉल्यूम को हम किस में लेंगे बेटा, अगर हम वॉल्यूम को ml में ले रहे हैं तो इसको हम 1000 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। ओके और अगर हम लीटर में ले रहे हैं तो नो नीड टू मल्टीप्लाई विथ 1000। ओके नाउ व्हाट इज द यूनिट ऑफ मोलैरिटी, मोलैरिटी आर द मोल्स, यूनिट क्या बनेगी, मास बाय मोलर मास मीन्स मोल्स और वॉल्यूम प्रेजेंट इन लीटर मोल्स पर लीटर। ठीक है और यू कैन से दैट मोल डेसीमीटर क्यूब, इसका भी डेसीमीटर पर डेसीमीटर क्यूब हो जाएगी। ठीक है सो दिस इज द यूनिट ऑफ मोलैरिटी। ओके बेटा नाउ द नेक्स्ट इज मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशंस दैट डिपेंड ऑन द टेम्परेचर। ठीक है ये किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर। अब क्यों डिपेंड करती है बेटा ये टेम्परेचर पे, क्योंकि बिकॉज वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन दैट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, वॉल्यूम टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। क्योंकि जो मोलैरिटी होती है बेटा वो टेम्परेचर के साथ हमेशा क्या होती है, चेंज होती है। ठीक है अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो वो भी चेंज होगी, इंक्रीज होगी। क्यों होती है, बिकॉज ऑफ द एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लिक्विड, क्योंकि लिक्विड कॉन्ट्रैक्ट भी होगा एक्सपेंस भी होगा, तो इसकी वजह से ही टेम्परेचर के साथ मोलैरिटी चेंज हो जाती है। ओके ये आ जाएगा आपका। नाउ नेक्स्ट कंसेप्ट आता है बेटा मोलैलिटी। देखो बेटा मोलैलिटी में क्या होता है, सपोज आपने बीकर में क्या किया, सॉल्वेंट को लिया, यहाँ पे सॉल्वेंट को आपने यहाँ पे ले लिया। ठीक है आपने इसमें सॉल्यूट को ऐड कर दिया। ठीक है सॉल्यूट जब सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है तो ये क्या शो करता है, मोलैलिटी शो करता है। देखो क्या होता है मोलैलिटी, इट इज़ डिनोटेड बाय स्मॉल m।
Okay, means the number of moles of solute that present in 1 kg of solvent. It is denoted by m. A molality that is equal to moles of solute divide by mass of solvent in kg. तो यहाँ से बेटा हम क्या निकाल सकते हैं, मोलैलिटी निकाल सकते हैं. ठीक है, अब इस kg को हमें ग्राम में चेंज करना है. इट मीन्स अगर इसको हम यहाँ पे ग्राम में लेंगे तो देन मोलैलिटी इज इक्वल टू mass of solute divide by molar mass of a solute इनटू में वहाँ आपका 1000 आ जाएगा बेटा, और डिवाइड बाय यहाँ आपका मास आ जाएगा सॉल्वेंट का इन ग्राम. ओके, ग्राम में लेंगे तो 1000 से उधर मल्टीप्लाई कर देंगे. ओके, now one more question arise from here. What is the unit of molality? ठीक है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मोलैलिटी. तो मोलैलिटी की यूनिट क्या हो जाएगी बेटा, मोल्स पर केजी, मोल पर केजी. ठीक है, ग्राम में लेंगे तो मोल्स पर ग्राम. ठीक है, ये आ जाएगा आपको. नाउ मोलैलिटी डज नॉट चेंज विद द टेम्परेचर. ठीक है, टेम्परेचर के साथ मोलैलिटी कभी भी चेंज नहीं होती. क्यों नहीं होती बेटा चेंज टेम्परेचर के साथ, क्योंकि इसमें वॉल्यूम कंसेप्ट नहीं है, इसमें सिर्फ मास ऑफ सॉल्वेंट इज टेकन है एंड मास इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर. दैट्स वाई मोलैलिटी डज नॉट चेंज विद द टेम्परेचर. ओके, नाउ नेक्स्ट इज, नाउ what is the main two difference between the concentration of solutions. कौन कौन से हैं two main concentration of solutions बेटा, फर्स्ट इज मोलैरिटी एंड सेकेंड इज मोलैलिटी. देखो, इन केस ऑफ मोलैरिटी क्या होती है, इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल M. मोलैलिटी इज डिनोटेड बाय स्मॉल m. ओके, मोलैरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स इन सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. ठीक है, एंड मोलैलिटी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट. 1 kg सॉल्वेंट में कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, मोलैलिटी बोलते हैं. ठीक है, मोलैरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स इन सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. मोलैलिटी इज नंबर ऑफ मोल्स इन सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी. मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी. ओके, अब पॉइंट नंबर 3, मोलैरिटी इज नॉट प्रेफर्ड. इसको प्रेफर नहीं करते, मोलैलिटी इज प्रेफर्ड. मोलैलिटी को हमेशा प्रेफर करते हैं. अब क्वेश्चन यहीं से अराइज होता है बेटा कि जो मोलैलिटी है उसको आप क्यों बेटर मानते हो. फॉर एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन मोलैलिटी इज कंसीडर्ड बेटर एज कंपेयर टू मोलैरिटी. तो इसको ज़्यादा बेटर मानते हो. रीज़न क्या है, बिकॉज मोलैरिटी चेंजेस विद टेम्परेचर. ये टेम्परेचर के साथ चेंज हो जाती है. ठीक है, ये कंसेप्ट यहाँ दे सकते हो. ये टेम्परेचर के साथ क्या होती है, चेंज हो जाती है ड्यू टू द एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ द लिक्विड. बट मोलैलिटी डज नॉट चेंज विद द टेम्परेचर. ये टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होती बिकॉज द मास ऑफ सॉल्वेंट डज नॉट चेंज विद द चेंज इन टेम्परेचर. ठीक है, दैट्स वाई मोलैलिटी इज प्रेफर. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज concept of molarity. देखो बेटा, in some cases we have to find out the mass of a certain compounds and the volume of a compounds. The mass of second compound and the volume of second compound will be given. In that case we have to apply this formula, m1v1 is equal to m2v2. तो आप कब यूज़ करते हो बेटा इसको, इन द केस ऑफ डाइल्यूशन. जब डाइल्यूशन होता है तभी आप इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हो. ठीक है, ऑन डाइल्यूशन. तो m1v1 इज इक्वल टू m2v2. यहाँ पे बेटा जो m1 है वो क्या है, मोलैरिटी. v1 क्या है, वॉल्यूम. ये है बिफोर डाइल्यूशन.
okay, and after dilution M2 is the molarity and V2 is the volume after dilution, ओके अब मैंने बताया जो वॉल्यूम है वो टेम्परेचर मोलैरिटी जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, बिकॉज द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इज ऑल्सो द टेम्परेचर डिपेंडेंट, दैट वाई इट डिपेंड ऑन द टेम्परेचर, ओके. नाउ नेक्स्ट इज नाउ द अनदर फॉर्मूला दैट इज यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग द मोलैरिटी इन फाइंडिंग, ठीक है. इफ़ यूजिंग डेंसिटी, अगर डेंसिटी हमारे पास गिवन है बेटा तो कैसे निकालेंगे, तो मोलैरिटी इज इक्वल टू परसेंटेज इंटू डेंसिटी इंटू 10 बाई मास. तो ये फॉर्मूला आपको लर्न करना है बेटा. नाउ नेक्स्ट इज नाउ स्टूडेंट दिस इज द न्यूमेरिकल बेटा. commercially available sulfuric acid contain 93% by mass and has a density of 1.84 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. कैलकुलेट द मोलैरिटी, हमें मोलैरिटी निकालनी है सॉल्यूशन की. सेकंड हमें निकालना बेटा वॉल्यूम ऑफ द कंसनट्रेटेड एसिड रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 2.5 ml ऑफ 0.50 m ऑफ H2SO4. ये हमें निकालना है बेटा. तो देखो हम कैसे निकालेंगे बेटा. इसमें सबसे पहले है बेटा 93% जो आपका H2SO4 है. इट मीन्स इसका मतलब क्या है कि 93 ग्राम ऑफ H2SO4 दैट आर प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन. यही हुआ ना, प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन. अब बेटा वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम होती है मास बाय डेंसिटी, ठीक है. अब बेटा मास हमें गिवन है 100, डेंसिटी कितनी है, डेंसिटी हमें गिवन है 1.84. तो यहाँ से हमारी वॉल्यूम आ जाएगी बेटा, जो भी आएगी x आगे सपोज, ठीक है. ये आ गया. अब हमें निकालने बेटा मोल्स ऑफ H2SO4. H2SO4 के मोल्स कैसे निकालेंगे, H2SO4 का जो गिवन मास कितना है बेटा 93 डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ H2SO4 98 होता है, ठीक है. तो जो भी आपका आंसर आए दैट इज y, ओके. अब हमें निकालने बेटा मोलैरिटी किसके इक्वल होती है, जो भी आपके मोल्स आए हैं. मोल्स कितने हैं मैं लिख देती हूँ 93/98 लिख देती हूँ बेटा इसको, ठीक है, इनटू 1000 आपके पास आई. और व्हाट इज़ द वॉल्यूम आपकी जो भी आई थी दैट इज़ 100 बाय कितना था 1.84. यही था डेंसिटी से, मास बाय डेंसिटी थी ना, ये मास था ये डेंसिटी थी, तो ये वॉल्यूम बन गई हमारी, ठीक है. आफ्टर कैलकुलेटिंग दिस इज़ योर आंसर, ओके. अब बेटा सेकंड पार्ट हमें निकालना है कि वॉल्यूम ऑफ कंसनट्रेटेड एसिड. वॉल्यूम कैसे निकलेगी, तो फॉर्मूला अप्लाई करो M1V1 इज इक्वल टू M2V2. यही है, ठीक है बेटा. अब आपको गिवन क्या है, जो भी आपका आंसर आया है मोलैरिटी से, जो पीछे यहाँ से आपकी मोलैरिटी आई है वो आप सपोज आपने मान लिया उसको x मान लिया सपोज, ठीक है. V1 कितना है, V1 तो बेटा हमें निकालना है, ठीक है, दैट इज इक्वल टू M2 कितना है बेटा, ये आपका गिवन है 0.50. वॉल्यूम कितनी है बेटा 2.5 ml, ठीक है, ये आपका गिवन है. अब इसमें हम निकाल सकते हैं बेटा, ठीक है. देन वॉल्यूम हमारी जो है जो भी आएगी दैट इज 0.50 मल्टीप्लाई 2.5 डिवाइड बाय जो भी आपकी मोलैरिटी आएगी ना वो यहाँ पुट कर देंगे एंड आफ्टर दैट योर वॉल्यूम विल बी कैलकुलेटेड, ओके. नाउ द नेक्स्ट इज what is the molarity of a solution containing 0.32 moles of NaCl in 3.4 liters. देखो बेटा मोलैरिटी कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स दैट इज 0.32 मोल्स ऑफ NaCl डिवाइड बाय 3.4 लीटर. ये आपको गिवन है बेटा, मोल्स पर लीटर होता है, दैट इज द मोलैरिटी 0.094 मोलर NaCl, ओके. नाउ नेक्स्ट इज Now the next example of molality, that is what is the molality of a solution consisting of 1.34 ml of carbon tetrachloride. CCl4 is given beta, density is also given, that is 1.59 gram per ml. In 65 ml of methylene chloride CH2Cl2, density is 1.33 gram per milliliter. ओके. देन हाउ विल यू कैलकुलेट द मोलैलिटी. देखो बेटा मोल्स कैसे निकालेंगे CCl4 की, 1.34
ml टाइम्स दे रखा है ये आपको, ठीक है। डेंसिटी दे रखी है बेटा, दोनों को क्या कर दो, डिवाइड, दैट इज 2.1306। ओके, अब आपको क्योंकि हम बेटा यहाँ से निकालेंगे मोल्स क्या होता है, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास, तो निकाल लेंगे यहाँ से। आफ्टर दैट आप देखो क्या गिवन है बेटा, सेकेंड हम देख रहे हैं कि जो हमारे पास ये आया है ग्राम में, ठीक है, मोल्स आया है, मोल्स डिवाइड बाय मोलर मास, ठीक है, जो भी आपका मोलर मास आएगा CCl4 में वो आपका यहाँ पे लिखा जाएगा, ठीक है। मोल्स आपका आ गया है, ठीक है, और ये आपका जो है आंसर आ जाएगा मोल्स में, ठीक है। हमने सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज, अब हमें देखना है बेटा मास कैसे निकालेंगे। अब मिथाइलिन क्लोराइड का मास कैसे निकालेंगे, देखो ये आपका 65 ml टाइम्स है, 1.33 ग्राम पर मिलीलीटर में है, तो इनको डिवाइड करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ओके, नाउ हाउ विल यू कैलकुलेट द मोलैलिटी, मोलैलिटी कैसे निकालेंगे। मोलैलिटी क्या होती है बेटा, मोलैलिटी स्मॉल इज m इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, जितना भी आपके मोल्स आए हैं, डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। अब सोलवेंट का मास लेंगे बेटा, यहाँ पे जितना भी आपका आया है ये सोलवेंट का मास है, उसको kg की फॉर्म में लेंगे और ये आपका जो है मोलैलिटी आ जाएगी, ठीक है। मोलैलिटी की यूनिट क्या रहेगी, मोल्स पर kg। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज लिमिटिंग रिएजेंट। देखो बेटा लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, मीन्स व्हेन एनी रिएक्शन इज कैरिड आउट इफ द रिएक्टेंट आर नॉट प्रेजेंट इन द अमाउंट एज रिक्वायर्ड बाय द बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, ठीक है। लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब ये है बेटा कि the reactant which is present in lesser amount and that get consumed after some time, means which has a limit the amount of product formed, this is called as limiting reagent। okay, and excess reagent क्या होता है, देखो ये limiting reagent है before the reaction, और एक्सेस रिएजेंट क्या है, जैसे ये आपके रेड डॉट्स हैं ये एक्सेस में है, मीन्स द रिएक्टेंट अदर देन द लिमिटिंग रिएजेंट विच आर प्रेजेंट इन एक्सेस, दिस इज कॉल्ड एज एक्सेस रिएजेंट, ठीक है। अब बेटा जो रिमेनिंग अमाउंट ऑफ एक्सेस रिएजेंट दैट इज कैलकुलेटेड बाय subtracting the available amount of limiting reagent from the amount of excess reagent। excess में से limiting को माइनस कर देंगे तो हमारे पास amount of excess reagent बच जाएंगे। ओके, तो देखो ये गिवन है बेटा कि लिमिटिंग reagent द रिएक्टेंट यूज्ड अप फर्स्ट इन द केमिकल रिएक्शन, ये यूज अप कर चुके हैं। एक्सेस में क्या है, द रिएक्टेंट प्रेजेंट इन क्वांटिटीज ग्रेटर देन द नेसेसरी टू रिएक्ट विद द क्वांटिटी ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। ओके, तो हमें ये पता होना चाहिए कि लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेस रिएजेंट क्या होता है। तो देखो बेटा इस सिचुएशन में जो वन ऑफ द रिएक्टेंट है दैट इज इन एक्सेस ओवर द अदर। ओके, द रिएक्टेंट विच आर प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट दैट गेट कंज्यूम्ड आफ्टर सम टाइम एंड आफ्टर दैट नो फर्दर रिएक्शन टेक्स प्लेस, सो दिस इज द लिमिटिंग रिएजेंट। ओके, तो ये आपका बेटा आंसर आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज व्हाई इन स्टोकियोमेट्रिक कैलकुलेशन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू चूज़ द लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट को चूज़ करना बहुत ही ज़रूरी है। क्यों बेटा, बिकॉज लिमिटिंग रिएजेंट ये डिसाइड करता है कि कितना अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन हुआ है, ठीक है। मीन्स लिमिटिंग रिएजेंट दैट डिसाइड द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट obtain। okay, now students you have to revise all these concentration terms that like mass fraction means mass percentage, okay, volume percentage, mole fraction, molarity, normality and molality, okay, and limiting reagent is the important topic। okay, thank you students।